Hello students, good morning. Students, today is 25th August and your chapter 5th fractions was going on. In the last class student, I have finished 13 questions of mental maths. So today I want to continue the question number 14 from question number 14. Okay. So in the question number 14 it has been given what is 3 minus 3 by 4. So look here, 3 minus 3 by 4 has been given. So you know about that. Here there is no number, so you can write 3 upon 1 minus 3 by 4. Okay, so students, you can see it here in the numerator. There are the 3, and in the denominator, in the both fractions, in the first fraction the denominator was 1, and in the second fraction the denominator is 4. So when the denominators are not equal, then you will equalize it with the help of the LCM. So we will take the LCM of denominator 1 and 4. So 2 2s are 4, then 2 1s are. So LCM is equal to 2 into 2 is equal to 4. So here you will write 4. Okay, so in 3 upon 1 the denominator is 1. 1 से आप इस LCM के नंबर में डिवाइड करेंगे, डिवीजन के बाद जो आपका आंसर आएगा आप उसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. So when we will divide 4 with the help of the 1, so we will find the answer 4. जब हम 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो हमको 4 मिलेगा. 4 को आप न्यूमरेटर यानी 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12. So here you will write 12. Same pattern you will follow in the second fraction. In the second fraction the numbers has been given 3 upon 4. In 3 upon 4 the denominator is 4. So आप 4 से 4 में डिवाइड करेंगे. So after that you will got 1. So 1 को आप न्यूमरेटर यानी 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3. So after that 12 minus 3 you have got. So 12 minus 3 is equal to 9 upon 4. So students, that is the fraction, and that fraction is called improper fraction because the numerator is more than the comparison of denominator. जब भी numerator denominator से ज्यादा होगा, so that is called improper fraction. So in the case of the improper fractions you will convert that fraction in the whole number. It means आप 4 से 9 में divide करेंगे. Okay, so 4 से आपने 9 में divide किया. Students, this is your rough. Okay, so you will write rough. 4 से आप 9 में divide करेंगे, 4 2 जा 8. 9 minus 8 is equal to 1. So here that number is whole number, that is numerator, and that is denominator. It means you will write the answer 2 whole number 1 by 4. So is equal to 2 whole number 1 by 4. So after that you will write the answer. Answer is equal to 2 whole number 1 by 4. Clear students? If you have any doubt, then you can ask the query with me. Okay. Now students, look question number 15. In question number 15 it has been given find 5 whole number 3 upon 5 minus 3 whole number 2 upon 5. Okay, so first you will solve it. Okay, so look here, this is the whole number. Okay, so here you will multiply denominator to whole number, so it means 5 into 5. 5 into 5 is equal to 25. Then after that 25 plus 3 is equal to 28. So here you will add 28 upon 5. Okay, same pattern we will follow in the second number also. The second is also whole number. So here you will find the 3 whole number 2 by 5 means आप डिनोमिनेटर के नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे. सो हियर द डिनोमिनेटर नंबर इज 5. सो 5 से आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 is 15. 15 प्लस 2 is equal to 17 अपॉन 5. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर से होल नंबर में मल्टीप्लाई करते हो. देन आफ्टर दैट जो आपका आंसर आता है आप उसे न्यूमरेटर में ऐड कर देते हो. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इट हियर. The denominators in the first fraction is 5 and in the second fraction the denominator is 5 also. So 5 और 5 का LCM क्या आएगा बेटा, 5 आएगा. Okay, so here you will write 5. In 28 upon 5 the denominator is 5. So आप डिनोमिनेटर के नंबर से LCM के नंबर में आप डिवाइड करोगे. So when you will divide 5 से 5 को आप डिवाइड करोगे, so you will got 1. Okay, डिवीजन के बाद जो आपका आंसर आता है आप उसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हो स्टूडेंट्स. सो 28 into 1 is equal to 28. Okay students, in the second fraction the denominator is 5 also. So 5 से आप 5 में डिवाइड करोगे, then after that you will got 1. So 17 को आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 17 बन जा 17. Now you can subtract it. 28 minus 17 is equal to 11. 11 upon 5. So students, as the previous questions I have already told to you, if the numerator is more than the denominator, so that is called improper fraction. Okay, so in case of the improper fraction you will convert that fraction in the whole number. Okay, so you will divide that number. It means you will divide 11 from 5. So look here, 5 and 11.
5 2s are 10. So when you will subtract 10 from 11, so after that you will got 1. Okay, so 2 is your whole number and 1 is your numerator and 5 is your denominator. So here you will write 2 whole number 1 by 5. So you will write the answer. So your answer is equal to 2 whole number 1 by 5. Clear, students? I think 14 and 15 questions are clear to all of you. Okay, if you have any doubt, then after that you can also ask the query in the query time. Okay, students? Now students, look the question number 16. In question number 16, the first fraction has been given 4 upon 5, then into, then second fraction has been given 6 upon 7 into 0. Students, remember I have already told to you at the time of the exercise, जब हमने मल्टीप्लिकेशन का एक्सरसाइज सॉल्व कराया था, सो हमने आपको उस समय ये बताया था, जब भी आप किसी नंबर को, किसी भी होल नंबर होता है या फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर हो चाहे प्रॉपर हो, चाहे कोई नंबर होता है, ओके, अगर आप उस नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो आफ्टर दैट यू विल गॉट द आंसर 0, आपको 0 ही मिलता है. ठीक है, सो हियर आई विल मल्टीप्लाई इट. सो 6 into 4 is equal to 6 4s are 24. 24 upon 5 7s are 35 into 0. 0 has been given here, so 24 is into 0 is equal to 0 by 35. It means that is called 0. So your answer, you will write the answer. Answer is equal to 0. Clear, students? Now students, question number 7. Question number 7 has been given 7 upon 9 into 9 upon 7 is equal to question mark has been given. इट मीन्स आपको ये मल्टीप्लाई करना है. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर का आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में. सो दैट क्वेश्चन आई विल प्रोवाइड टू यू इन योर होमवर्क. ओके, नाउ लुक द क्वेश्चन नंबर 18. इन क्वेश्चन नंबर 18 इट हैज बीन गिवन व्हाट फ्रैक्शन एडेड टू 5 अपॉन 8 मेक्स 1. इट मीन्स हम 5 अपॉन 8 जो हमारा फ्रैक्शन दिया है उसमें क्या ऐड करें कि हमको 1 मिल जाए. ओके, सो लुक द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन. फर्स्ट थिंग रिमेंबर स्टूडेंट्स, 1 is more than 5 upon 8. ये ध्यान रखिएगा बेटा, 1 क्या है, 5 upon 8 से ज्यादा है. सो अगर आपको ये ऐड करना है, सो आप 1 से क्या करोगे, 5 upon 8 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे. आपको ये पता होगा स्टूडेंट्स, बड़े नंबर से छोटे नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो हियर द ग्रेटर नंबर इज 1 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 5 by 8. सो हाउ कैन यू सॉल्व? सो हियर यू विल राइट वी विल एड इज इक्वल टू 1 minus 5 by 8. ठीक है स्टूडेंट्स? सो हियर यू कैन सी इट हियर. Here the number has been given 1 and the denominator there is no number. So I have already told to you, if there is no number in the denominator, so you will write here 1. So अगर आपका denominator में कोई नंबर नहीं है तो आप इसे क्या लिखते हो, 1. So 1 और 8 का अगर आप LCM निकालोगे, so here you will write the LCM. सो 1 और 8 का एलसीएम स्टूडेंट्स 8 आता है. लुक हियर, 2 1 को ऐसे लिख दोगे, 2 4s are 8, देन 2 1 को ऐसे लिखोगे आप, 2 2s are 4, देन 2 1 1. ओके, सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8. सो हियर वी हैव गॉट 8. सो हियर यू विल राइट 8. इन 1 upon 1 न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 1. सो आप डिनोमिनेटर के नंबर से आप एलसीएम के नंबर में डिवाइड करोगे. सो 1 से जब आप 8 में डिवाइड करते हो बेटा, सो यू विल गॉट 8. देन जो आपको 8 मिल रहा है आप उसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे. न्यूमरेटर हैज बीन आल्सो गिवन 1, सो 8 1s are 8 माइनस इन द सेकंड फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज 8. सो आप 8 से एलसीएम का नंबर भी 8 दे रहा है, सो आप 8 से 8 में डिवाइड करोगे. सो देन आफ्टर दैट यू विल गॉट 1. ओके, देन जो भी आपको आंसर मिला डिवीजन पर, आप उसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हो. सो 1 इज योर आंसर आफ्टर द डिवीजन. सो 5 into 1 is equal to 5. सो 8 minus 5 is equal to 3, 3 upon 8. So that is your answer, 3 upon 8. So here you will write the answer. Answer is equal to we should add 3 upon 8. We should add is equal to 3 upon 8. So beta, that is your answer. Clear students? Now students, look question number 19. Question number 19 has been given what fraction added to 3 upon 5 makes 1. यानी आप 3 upon 5 में क्या फ्रैक्शन ऐड करें कि आपका आंसर जो आ जाए 1 आ जाए. सो स्टूडेंट्स, 19 क्वेश्चन इज सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 18. आपका 19 क्वेश्चन जो है वो 18 की तरह सेम है. सो दैट क्वेश्चन यू विल सॉल्व इन योर
homework. Okay, now look the question number 20, that is the last question of mental maths, okay, of chapter 5th. So look here, question number 20 has been given. If 1/4 of a number is 10, what is the number? It means कोई नंबर है जिसका 1/4 जो है वो 10 है. So वो नंबर आखिर है क्या? So look here, how can we solve it here? Okay, let us, हमने सपोज करे, let us we suppose, देखना बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है, सो ध्यान से देखिएगा. लेट अस वी सपोज नंबर इक्वल टू एक्स. हमने क्या मान लिया बेटा? नंबर क्या है? एक्स है. सो इन द क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन, लेट अस इफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 10. सो एज पर द क्वेश्चन, क्या कह रहा है बेटा? ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी नंबर का 1/4 क्या है? 10 है. इट मीन्स हमने नंबर माना क्या? एक्स. एक्स का 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन. ये हमने आपको बताया है जब हमने एक्सरसाइज कराया था मल्टीप्लीकेशन का चैप्टर 5th में ही. सो हमने आपको बताया था ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन. सो 1/4 ऑफ द नंबर, इट मीन्स हमने नंबर क्या माना? एक्स माना. सो हमने 1/4 किसका किया? एक्स किया. वो क्या है? 10 है. इट मीन्स 1/4 जो एक्स का है वो 10 के इक्वल है. ओके, सो आपको ये बताना है नंबर क्या. हमने नंबर क्या सपोज किया? एक्स. तो हियर आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. हमने यहाँ नंबर क्या सपोज किया बेटा? एक्स फाइंड आउट लिखा है. हमने एक सपोज कर लिया नंबर के, हमने सपोज किया नंबर क्या? एक्स है. सो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी पहले. सो हियर एक्स हैज बीन गिवन. आप एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर से. सो रिमेंबर बेटा, जब आप एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हो सो आता है 1x. लेकिन 1x को 1x नहीं लिखा जाता, उसे क्या लिखते हैं? x. ओके, एंड इन डिनोमिनेटर देयर इज नो नंबर. सो आप या तो 1 मान सकते हो. अगर आप 1 भी मानोगे तो 4 का क्या आएगा? 4 इंटू 1 इक्वल टू 4. या 4 है तो आप एज इट इज 4 भी लिख सकते हो, इक्वल टू 10. स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. इन द नंबर 10 देयर इज नो डिनोमिनेटर, सो आई हैव पुट इट हियर 1. अगर कोई नंबर के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं दिया होता है सो हम उसे 1 लिख सकते हैं. ठीक है, सो यू नो अबाउट द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर से राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करते हो. सो लेफ्ट हैंड साइड में आपका न्यूमरेटर क्या है? एक्स है. एंड राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर क्या है? 1 है. सो हम एक्स को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग क्या होती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में? लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका डिनोमिनेटर होता है आप उसे राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हो. सो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर क्या है? 4 है. एंड राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर क्या है? 10 है. सो आप 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे. सो लुक हियर, हाउ कैन यू मल्टीप्लाई? x इंटू 1 इक्वल टू 4 इंटू 10. सो x को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या आएगा? 1x. 1x अभी हमने आपको बताया नहीं लिखा जाता. 1 अगर 1 से ज्यादा डिजिट होती, माना 2 होता तो हम लिखते. ठीक है, लेकिन अगर 1 होता है तो खाली x लिखते हैं. x का मतलब ही होता है कि 1x, यानी जो भी अल्फाबेटिकल नंबर होगा यहां पर आप उसे लिखेंगे. ठीक है, सो x इक्वल टू 1x. हमने क्या बताया? 1x को हम x लिख सकते हैं. सो x इक्वल टू 4 इंटू 10. 10 4 जा 40. सो x की वैल्यू क्या आई बेटा? 40 आई. हमने x क्या सपोज किया था? x के बारे में क्वेश्चन में नहीं दिया था. हमने क्या सपोज किया था? लेट अस वी सपोज नंबर इक्वल टू x. हमने सपोज किया था कि नंबर हमारा क्या है? x है. सो हमें x की वैल्यू मिल गई. सो इट मीन्स हमारा नंबर भी हमें मिल गया. सो देयरफॉर नंबर इक्वल टू 40. सो यू कैन राइट द आंसर. सेम आंसर आप इसी तरह लिख सकते हो. आंसर नंबर इक्वल टू 40. आई थिंक स्टूडेंट्स नाउ ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन क्लियर टू यू. आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. हमने क्या माना पहले? नंबर क्या है? x है. x की वैल्यू क्या है? नंबर क्या लिखा था? 1/4 ऑफ ए नंबर. सो हमने x का 1/4 किया. कितने बराबर है वो? इज 10. सो हमने क्या किया? x इंटू 1/4 10. सो x को हमने 1 में मल्टीप्लाई किया. x आया, 4 का 4 लिखा, 10 का 10 लिखा. जब भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं दिया होता है बेटा तो हम उसे 1 मानते हैं. सो आफ्टर दैट हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया. x को 1 में मल्टीप्लाई किया एंड 4 को 10 में मल्टीप्लाई किया. सो जब हमने x को 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या है? x इंटू 1 एंड 4 को हमने 10 में मल्टीप्लाई किया. 4 इंटू 10. सो x इंटू 1 इक्वल टू 1x, या हम इसे क्या कहते हैं? x इक्वल टू 40. आपने x क्या माना था? नंबर माना था. सो देयरफॉर नंबर इक्वल टू 40 एंड दैट इज योर आंसर. क्लियर स्टूडेंट? सो नाउ स्टूडेंट्स योर मेंटल मैथ्स क्वेश्चंस हैज बीन फिनिश्ड. Okay, so after this I will start mixed bag questions.
So in the mental math questions, if you have any doubt, so students, you can ask the query with me without any hesitation at the query time. Okay. So now students, this is the question number 1 of mixed bag. In mixed bag, the question has been given. First question, choose the correct answer. Which pair of fractions are equivalent? Students, there are the 4 parts of A questions. You can see it here. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. ए पार्ट आपको ये बताना है कौन सा पेयर ऐसा है फ्रैक्शंस का जो इक्विवेलेंट है. 1 2 3 4 देयर आर द 4 पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन हैज बीन गिवन. सो आपको ये देखना है कौन सा फ्रैक्शन हमारा इक्वल है. सो इन द कॉपी आई विल सॉल्व इट. सो लुक हियर. फर्स्ट फ्रैक्शन हैज बीन गिवन 2/5 एंड 1/5. स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट दैट. अगर आप किसी फ्रैक्शंस को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, या आपको ये देखना हो अरेंज करना हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, सो हमने आपको बताया क्या था, आपका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए. ओके. सेम पैटर्न यू विल फॉलो एट द टाइम ऑफ द इक्विवेलेंट व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट. जब आपको ये पता करना होगा कि आपके फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं है, सो सेम पैटर्न आप उसे फॉलो करोगे. सो लुक हियर, हाउ कैन वी फाइंड आउट इट. आपको इसमें चारों पार्ट इसके सॉल्व करने पड़ेंगे. देन आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट विच फ्रैक्शन इज इक्वल और नॉट. ओके. सो 2/5 1/5. So you know about that students, denominator are equal. So आप डिनोमिनेटर अगर इक्वल नहीं होते हो तो आप एलसीएम देख करके निकालते हो. एलसीएम निकालते हो आप डिनोमिनेटर्स का, देन आप इक्वल देखते हो. तो आपके डिनोमिनेटर इक्वल है, सो आप न्यूमिनेटर देख के बता सकते हो ये इक्वल है. 2 या 1 इक्वल होता है? 2 और 1 नो. सो यू विल राइट द आंसर हियर. डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ फ्रैक्शंस are equal, but the numerators of both fractions are not equal. So 2/5 and 1/5 is not equivalent fraction. आपके डिनोमिनेटर तो इक्वल होने ही चाहिए, ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर भी आपको इक्वल चाहिए. सो हियर न्यूमरेटर इज नॉट इक्वल. सो 2/5 एंड 1/5 क्या है? इक्वल नहीं है. सो हियर यू विल राइट 2/5 एंड 1/5 इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लुक द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. सो second question has been given 10/3 and 3/10. So look here students, in the both fractions there is the not equal of the डिनोमिनेटर आपके यहाँ इक्वल नहीं है. सो फर्स्ट आप क्या करोगे बेटा, पहले इक्वलाइज करोगे विद द हेल्प ऑफ द एलसीएम. डिनोमिनेटर्स आर 3 and 10, सो दैट विल बी डिविजिबल बाय 2. 2 5s are 10 and 3 1s are 3, then 5 as it is, 5 1s are 5. So LCM is equal to 2 into 3 into 5. 2 3s are 6, 6 into 5 is equal to 30. Okay. So here you will write 30. So students, you can see it here, डिनोमिनेटर इक्वल है आपके. 3 से आप 30 में डिवाइड करेंगे, सो 10 आएगा. 10 से आप न्यूमरेटर 10 है, 10 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इन द सेकंड फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज 10. 10 से आप 30 में डिवाइड करेंगे, 3 आएगा. 3 से आप न्यूमरेटर भी 3 दिया है, 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आएगा. सो आफ्टर दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड 100/30 एंड 9/30. So students, you can see it here, in the both fractions the denominator are equal but the numerator is not equal. So you can also write it here, denominators are equal but the numerators are not equal. So that is the fraction. that question, आप क्वेश्चन के फ्रैक्शन को लिखोगे. So 10/3 and 3/10 are not equivalent fractions. Clear students? Now look the third part of this question. In the third part the fractions has been given 3/7 and 6/14. So here you will find out the LCM because denominators are not equal here. So in the rough column you will find the LCM 7 and 14. So look here, 2 7 as it is, 2 7s are 14 and 7 1. Okay. So LCM is equal to 2 into 7. 7 2s are 14. So here you will write 14.
हमको एलसीएम क्या मिला, 14 मिला. सो इन द फर्स्ट फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज 7. 7 से आप 14 में डिवाइड करेंगे. सो जब हम 7 से 14 में डिवाइड करेंगे सो वी विल फाइंड आउट 2. हमको 2 मिलेगा. 2 को आप न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6. ओके, सेम पैटर्न यू विल फॉलो इन द सेकंड फ्रैक्शन. इन सेकंड फ्रैक्शन द नंबर द डिनोमिनेटर इज 14. 14 से आप 14 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा. देन 1 को आप न्यूमरेटर में 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6. सो नाउ यू विल गॉट द LCM fractions. First fraction is 6 by 14 and second fraction is also 6 by 14. So here you can see it. आप ये देख सकते हो both fractions के हमारे equal है. So that fraction is relates on the question 3 by 7 and 6 by 14. So here you will write here both the fractions has been given 3 by 7 and 6 by 14. 3 by 7 and 6 by 14 are इक्वलेंट. ओके बेटा, आंसर तो मिल गया आपको, लेकिन फोर्थ पार्ट भी दिया है. सो हम फोर्थ पार्ट भी इसे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको. इन फोर्थ पार्ट द फ्रैक्शन हैज बीन गिवन 1 by 2 एंड देन अनदर नंबर हैज बीन गिवन 2. सो लुक हियर हाउ कैन वी सॉल्व इट. 1 by 2 2 इनटू देयर इज नो डिनोमिनेटर. जब कोई डिनोमिनेटर नहीं होता बेटा क्या मानते हैं, 1. सो 2 और 1 का एलसीएम बेटा 2. सो 1/2 में डिनोमिनेटर 2 है, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा. देन 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा. इन 2 by 1 द डिनोमिनेटर इज 1. 1 से 2 में आप डिवाइड करेंगे 2 आएगा. देन 2 को 2 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा. सो हियर यू हैव गॉट 1/2 एंड 4/2. सो यू कैन सी इट हियर डिनोमिनेटर इक्वल है बट न्यूमरेटर इक्वल नहीं है. सो हियर यू विल राइट हियर डिनोमिनेटर्स आर इक्वल but numerators are not equal. So 1/2 and 2 are not equivalent. Clear students? So आपको आंसर क्या मिला बेटा, आंसर नंबर 3rd. So you can write the answer equivalent fractions 3rd 3 by 7 and 6 by 14. So students, आज की क्लास में इतना ही. If you have any doubt then you can also ask the query with me. Okay.